in this chapter we have started the adaptation process. Understood? So here in adaptation we have studied about the adaptation in animals and we have started the adaptation in plants. So in plants mainly three types of plants are there, that is hydrophytes, xerophytes as well as mesophytes. Understood? Mesophytes को कोई adaptation की जरूरत नहीं होती है. Xerophytes and hydrophytes है उसको specific adaptation changes की जरूरत होती है क्योंकि वो stressful condition में grow होते हैं. Like and बहुत ही ज्यादा अगर पानी होगा then hydrophytes, बहुत ही कम पानी होगा then it is known as xerophytes. Understood? So we have studied about the adaptation in xerophytes as well as adaptation in halophytes. Now let's move on to the next adaptation in plants, that is an hydrophytes. Adaptation in hydrophytes. Understood? So hydrophytes यानी कि ऐसे प्लांट जो कि प्लांट वाटर के अंदर ग्रो होते हैं, पानी में ही ग्रो होते हैं, उसका सोइल से कुछ भी लेना देना नहीं है. Understood? तो ऐसे प्लांट्स को बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स. अब तीन तरह के यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स होते हैं. पानी में ग्रो होने वाले जो प्लांट है वो तीन तरह के होते हैं. देखिए सबमर्ज. सबमर्ज का मतलब होता है कि पूरा का पूरा जो प्लांट है वो डूबा हुआ होता है, पानी के अंदर ग्रो होता है, फ्लोट नहीं होता, ऊपर से नहीं गिरता है, अंदर ही होता है. So this plant is known as a submerged plant. The example of a submerged plant is the Hydrilla, Vallisneria and Potamogeton. So this plant, that is the Hydrilla, Vallisneria and Potamogetons are a rooted plant. यानी कि इसके पास roots है वो होंगे. Then Utricularia and Ceratophyllum. These both plants are act as a non-rooted plant. इसके अंदर well developed root है वो नहीं होंगे. That's why we can say it is a non-rooted plant. Understood? Next one, that is a free floating plant. Free floating plant यानी कि ऐसे प्लांट जो कि पूरा का पूरा वाटर के अंदर फ्लोट होगा. And generally ऐसे प्लांट के अंदर जो रूट्स होते हैं they are not well developed roots and that's why we can say these plants are a non-rooted plants. The best example of a non-rooted or free floating plant, that is an Eichhornia and Pistia. Eichhornia, Pistia, Limna and Wolfia. So these are the example of a free floating plant. Obviously वो water surface पर ही float करेंगे. Understood? Next one, that is a floating leaves and anchored plant. यानी कि लीव्स है वो कैसे होंगे, ऊपर फ्लोट करेंगे, लेकिन बाकी का जो स्टेम एज वेल एज रूट का जो रीजन होगा वो एंकर्ड होगा, कोई भी सरफेस से वो क्या हुआ होगा, जुड़ा हुआ होगा. अंडरस्टूड? एंकर्ड होगा. यहाँ पर देखिए ये जो प्लांट्स है दे आर रूटेड क्योंकि एंकर्ड है. दैट्स व्हाई द एग्जांपल ऑफ ए फ्लोटिंग लीव्स एंड एंकर्ड प्लांट इज एन नेलम्बो. लोटस का जो प्लांट होता है ना इसको बोलते हैं नेलम्बो. तो लोटस जो होता है उसमें देखिए ऊपर उसके जो लीव्स होते हैं एंड फ्लावर होता है लोटस, वो तो ऊपर तैरते रहते हैं यानी कि फ्लोटिंग होते हैं, लेकिन उसका जो स्टेम एंड रूट का रीजन होता है वो नीचे सबमर्ज होता है एज वेल एज इट इज एन एंकर्ड, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या होगा, एंकर्ड होगा कोई ना कोई सरफेस से. देन निम्फिया एज वेल एज वाटर चेस्टनट एंड विक्टोरिया. देखिए विक्टोरिया का एक खास बात है विक्टोरिया की, इसके जो लीव्स होते हैं बहुत ही बड़े बड़े होते हैं. Understood? So Victoria is having the longest and strongest leaves among the hydrophytes. तो ये याद रखना है. Next one, that is an amphibious hydrophytes. Amphibious hydrophytes का मतलब है कि उसका आधा हिस्सा है वो पानी के ऊपर होगा, आधा हिस्सा है वो पानी के नीचे होगा. Understood? So some part is outside the plant, some part is inside the plant. Water is known as an amphibious. Example of an amphibious, there is a Sagittaria as well as Juicia. Understood? As well as Limnophila. So these are the three examples of an amphibious plant. Now ये तो सारे हाइड्रोफाइट्स के टाइप्स हुए अलग अलग तरह के ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन. लेकिन यहाँ पर ये जो प्लांट है वो किस तरह से अपने आप को ढालते हैं, बहुत ही ज्यादा पानी है तो उसमें किस तरह से अपने आप को ग्रो करते हैं, किस तरह का एडेप्टेशन है वो देखने को मिलेगा. अंडरस्टूड? सो व्हाट आर द एडेप्टेशन. यहाँ पर देखिए ये जो प्लांट्स है उसके रूट्स है वो कैसे होंगे. अंडरस्टूड? यहाँ पर देखिए रूट्स है वो कैसे होंगे, कई प्लांट्स है जिसमें रूट्स है वो एब्सेंट होंगे, जैसे इकोर्निया है, पिस्टिया है. अंडरस्टूड? इसके अंदर रूट है वो टोटली वोल्फिया है, एब्सेंट है. अंडरस्टूड? और कई जो प्लांट है इसके अंदर रूट्स है वो पुअर है तो सही लेकिन पुअरली डेवलप्ड है. अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल ये जो हाइड्रिला है, वेलिस्नेरिया है, उसके अंदर रूट है प्रेजेंट लेकिन पुअरली डेवलप्ड. क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पानी के अंदर ग्रो होने वाले प्लांट्स है उसके अंदर वेल डेवलप्ड रूट्स नहीं होंगे, बहुत ही मोटे मोटे ऐसे रूट्स नहीं होंगे. क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मेनली जो प्लांट के अंदर
अंडरस्टूड। प्लांट को वो क्या देता है, स्टेबल पोजीशन देनी है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई पोजीशन नहीं देनी, क्योंकि वो तो जो पानी में ग्रो होने वाले जो प्लांट है वो तो फ्री फ्लोटिंग होते हैं, तो ऑब्वियसली उसको एक स्टेबल जगह पर खड़ा नहीं रहना है। दूसरा कि यहाँ पर नॉर्मल जो प्लांट होते हैं उसमें रूट का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एन वाटर। यहाँ पर वो भी नहीं करना है, क्योंकि पूरी जगह पर पानी पानी है, तो किसी भी जगह से वो पानी है उसको एब्जॉर्ब कर सकता है, अंडरस्टूड। तो इसलिए यहाँ पर रूट से वो बहुत ज्यादा डेवलप है वो नहीं होंगे, अंडरस्टूड। एज वेल एज यहाँ पर देखिए कई प्लांट में रूट पॉकेट्स है वो प्रेजेंट होंगे, और उसका काम क्या होता है, इट विल गिव्स एन फ्लोटिंग सॉरी इट विल गिव्स एन स्टेबिलिटी टू एन पर्टिकुलर प्लांट। प्लांट को एक क्या देता है, एक स्टेबल पोजीशन है वो प्रोवाइड करता है, रूट पॉकेट बैलेंसर का काम करता है, बैलेंस देता है ना, obviously. And the example of a plant which is having a root pocket, that is an Econia. Next one, this plant is having a floating roots. Obviously सभी पार्ट से वो कैसे है, floating ही है, leaves, stem as well as roots. तो यहाँ पर जो floating root, stem and leaves है, it is because of the presence of a specific type of a tissue or specific types of a cells. They are known as an parenchyma. अंडरस्टूड। आपने जब प्लांट के टिश्यू के बारे में पढ़ा था 11th में, तब आपने देखा था पेरेन्काइमा टिश्यू होता है, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। उसमें से पेरेन्काइमा है एक तरह का होता है एरेन्काइमा, जिसमें एयर है वो भरी रहती है, जिसकी वजह से फ्लोट करते हैं ये जो प्लांट्स, अंडरस्टूड। सो यहाँ पर फ्लोटिंग रूट्स होंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एरेन्काइमा। नाउ व्हिच टाइप ऑफ स्टेम इज फाउंड इन द हाइड्रोफाइट्स। किस तरह के स्टेम होंगे हाइड्रोफाइट्स में, देखिए सबमर्ज प्लांट है उसके अंदर जो स्टेम है ऑब्वियसली कहां पर होगी, अंदर की तरफ डीप होगी, सबमर्ज होगी, अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल हाइड्रीला, हाइड्रीला की जो स्टेम है वो ऑब्वियसली पानी के अंदर डीप होगी, अंडरस्टूड। सो इट इज नोन एज अ सबमर्ज। एंकर्ड स्टेम यानी कि कई प्लांट है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो फ्लोटिंग लीव्स एंड एंकर्ड प्लांट है, ये जो नीलंबो है, वाटर चेस्टनट है, निम्फिया है, इसके अंदर जो स्टेम होगी वो क्या होगी, एंकर्ड होगी, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई सपोर्ट है उसके अंदर एंकर्ड होगी, अंडरस्टूड। ओके। नाउ यहाँ पर सबमर्ज्ड जो प्लांट्स होते हैं, जो स्टेम सबमर्ज होती है, वो जो स्टेम होगी वो इतनी ज्यादा थिक नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इट इज एन लॉन्ग एज वेल एज थीन स्टेम। लेकिन यहाँ पर जो एंकर्ड स्टेम होगी ना, ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग होगी एज वेल एज थिक होगी, क्योंकि उसको एक सपोर्ट देना है, दैट्स व्हाई। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज द लीव्स। स्टेम रूट के बारे में पढ़ लिया, नाउ दैट इज द लीव्स, यानी कि हाइड्रोफाइट्स के अंदर लीव्स है वो किस तरह के होंगे। देखिए यहाँ पर अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग लीव्स होंगे। यहाँ पर देखिए जो सबमर्ज्ड प्लांट है ना, उसके जो लीव्स है वो किस तरह के होंगे, या तो डाइसेक्टेड होंगे या तो लॉन्ग रिबन लाइक होंगे। डाइसेक्टेड का मतलब है इस तरह के लीव्स होंगे, अगर इस तरह से ब्रॉड लीफ होते हैं, अंडरस्टूड, तो क्या होता कि यहाँ पर जो वाटर करंट है वो आता, जिसके कारण ये जो लीव्स है वो फट जाते, टूट जाते, अंडरस्टूड। तो ऑब्वियसली यहाँ से वाटर करंट वो इजीली पास हो सकता है, और इसलिए यहाँ पर जो सबमर्ज्ड होते हैं ना प्लांट्स, उसके जो लीव्स है वो कैसे होते हैं, डाइसेक्टेड होते हैं। दूसरे ऐसे लॉन्ग रिबन टाइप होंगे, इस तरह के लीव्स होंगे, रिबन जैसे लॉन्ग स्लेंडर, अंडरस्टूड। ओके, सो द एग्जांपल ऑफ एन प्लांट व्हिच इज हैविंग a dissected leaves, that is an Ceratophyllum, and the example of a plant which is having ribbon like leaf, it is an Valisneria. Now free floating and floating anchored जो प्लांट होते हैं ना, ये जो फ्री फ्लोटिंग है और फ्लोटिंग एंकर्ड जो प्लांट है उसके अंदर लीव्स है वो कैसे होंगे, देखिए they are having broad and undissected leaves with waxy cuticle, ऊपर की तरफ फ्लोट हो रहे हैं, ऑब्वियसली ऊपर की सरफेस पर है, अंडरस्टूड। यानी कि वाटर करंट इसको इतना ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली जो क्यूटिकल है, ऊपर की जो लेयर है, अंडरस्टूड, वहां पर अगर पानी आता है और वहां पर अगर पानी भरा रहता है तो एक वाटर लॉगिंग है वो क्रिएट करेगा, यानी कि यहाँ पर क्यूटिकल जो होती है वो वैक्सी होती है, ताकि पानी है वो लीफ के ऊपर ना रहे, सीधा ही नीचे गिर जाए, ठीक है। सो द लीफ है वो कैसे होंगे, ब्रॉड होंगे, इट इज नॉट ए डाइसेक्टेड और कैसे रिबन लाइक। नाउ एम्फीबियस जो प्लांट्स होते हैं, जो फोर्थ कैटेगरी है हाइड्रोफाइट्स की, दैट इज एन एम्फीबियस प्लांट,
हमारा जो हाइड्रोफाइट्स है उसके अंदर स्टोमाटा है वो कैसे होंगे। अब कई प्लांट है उसके अंदर स्टोमाटा तो एब्सेंट होंगे। फॉर एग्जांपल सबमर्ज्ड जो प्लांट है उसके अंदर स्टोमाटा है वो एब्सेंट होंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली उसको स्टोमाटा की कोई जरूरत तो है नहीं। ऊपर होंगे तो हवा में से गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं, वो तो प्लांट नीचे है यानी कि एयर के कांटेक्ट में ही नहीं है। तो यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज कहाँ से होगा? फ्रॉम द बॉडी सरफेस। अंडरस्टूड। दूसरे जो प्लांट है ये देखिए फ्री फ्लोटिंग एज वेल एज फ्लोटिंग लीव्स एंकर्ड जो प्लांट होते हैं उसके जो लीव्स होते हैं वहां पर स्टोमेटा है वो सिर्फ ऊपर की लेयर पर ही प्रेजेंट होगा, नीचे की लेयर पर नहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि नीचे की जो लेयर होती है लीव्स की वो तो टोटली पानी से अटैच होती है। अंडरस्टूड। तो एयर के साथ कौन सी लेयर है वो एक्सपोज होती है? दैट इज एन अपर मोस्ट लेयर। तो एक ही लेयर पर स्टोमाटा है वो प्रेजेंट होगा एंड दैट्स व्हाई दिस स्टोमाटा इज नोन एज एन एपिस्टोमाटा। अंडरस्टूड। सो फ्री फ्लोटिंग एज वेल एज फ्लोटिंग एंकर्ड जो प्लांट होंगे उसके अंदर जो स्टोमाटा होंगे दे आर नोन एज एन एपिस्टोमाटा। अब नेक्स्ट जो है दैट इज फोर्थ कैटेगरी एम्फीबियस प्लांट। उसमें क्या होगा कि हाफ पार्ट वो सरफेस से ऊपर होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि बोथ द सरफेस ऊपर की लेयर एंड नीचे की लीफ की लेयर है दोनों ही एयर के कांटेक्ट में होंगी, यानी कि यहाँ पर लोअर एंड अपर लेयर पर स्टोमाटा है वो प्रेजेंट होगा एंड दिस स्टोमाटा इज नोन एज एन एम्फीस्टोमाटा। So this is a stomata present in the hydrophytes. Now another characteristics of an hydrophyte that is presence of a thin epidermis. यहाँ पर अगर वाटर इवोपरेशन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी तो ज्यादा है ही, तो पानी की तो कोई कमी ही नहीं है। तो उसको ऑब्वियसली पानी को स्टोर करके नहीं रखना है, या तो पानी को वाटर लॉस है वो रिड्यूस भी नहीं करना है, भले ही वाटर लॉस हो जाए उसके पास तो ज्यादा पानी अवेलेबल है ही। तो ऑब्वियसली एपिडर्मिस थिन होगी, क्यूटिकल भी थिन होगी, भले ही वाटर लॉस हो जाए। यहाँ पर देखिए जो टिश्यू है ना दैट इज अ वास्कुलर टिश्यू, जाइलम फ्लोएम जिसे बोलते हैं, वो ज्यादा डेवलप नहीं होते क्योंकि जरूरत ही नहीं होती है। जनरली जाइलम फ्लोएम का काम क्या होता है कि वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह पर। जनरली हमारा जो नॉर्मल प्लांट्स होता है उसमें जाइलम क्या करता है कि पानी को रूट से लीफ एज वेल एज स्टेम तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर तो सभी जगह पर पानी ही है, लीफ इज ऑल्सो इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर, स्टेम इज ऑल्सो इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर वास्कुलर टिश्यू है वो इतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं होती, पुअरली डेवलप्ड होती। और ये जो मैकेनिकल टिश्यू है वो भी इतने ज्यादा डेवलप नहीं होते, क्योंकि ये जो प्लांट है उसको वो कोई स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती, दे आर फ्रीली फ्लोटिंग। तो ऑब्वियसली वाटर करंट है इससे कोई बचने की जरूरत नहीं है, दे आर फ्लोटिंग अकॉर्डिंग टू द करंट ऑफ एन वाटर। तो इसलिए इसके जो मैकेनिकल टिश्यू है वो भी पुअरली डेवलप्ड होंगे। यहाँ पर जो एरेंकाइमा है दे आर अबंडेंट, लीव्स में भी, स्टेम में भी, रूट में भी एरेंकाइमा है वो अबंडेंट होंगे, ताकि यहाँ पर जो प्लांट है उसको एक फ्लोटिंग नेचर मिले। अंडरस्टूड। ये जो प्लांट है वो फ्लोट होते हैं हाइड्रोफाइट्स, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एरेंकाइमा। तो एरेंकाइमा बहुत ही ज्यादा होंगे, अबंडेंट होंगे, इट इज अ टाइप ऑफ एन टिश्यू। नाउ यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है इट इज थ्रू एन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, मोस्टली इट इज थ्रू एन वेजिटेटिव प्रोपगेशन, लेकिन कई बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं बट इट इज इन द अनफेवरेबल कंडीशन। अंडरस्टूड। और अगर उसकी फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो कौन सा रिप्रोडक्शन है वो परफॉर्म करेंगे, दैट इज एन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अंडरस्टूड। अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। देखिए ऑफसेट जो फ्री फ्लोटिंग होते हैं ना उसके अंदर किस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ऑफसेट, यानी कि स्टेम है वो ऊपर की तरफ होगी और इस तरह से ऊपर से सरफेस से ये डाउन ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव होगी और फिर से यहाँ से जो बर्ड्स होंगे वहां से प्लांट को ग्रो हो जाएगा। ऑफसेट ये हमने पढ़ा है 11th में, ऑफसेट क्या होते हैं, देन राइजोम्स क्या होते हैं, देन प्यूरियंस है वो क्या होते हैं। अंडरस्टूड। राइजोम्स में क्या होगा कि यहाँ पर राइजोम्स जनरली किसमें होता है, फ्लोटिंग लीव्स, फ्लोटिंग एंकर्ड प्लांट। अंडरस्टूड। फ्लोटिंग एंकर्ड यानी कि किसमें होगा, ये जो लीफिया है, वाटर चेस्टनट है, जनरली इसमें क्या होगा कि स्टेम है वो अंदर की तरफ पानी में सबमर्ज होती है और वहां से उसका प्रोपगेशन वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। सो दिस इज अ राइजोम्स। ट्यूरियोन यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि एक लार्ज बल्ब जैसा बड फॉर्मेशन होगा और वो जो बड है वो फिर डिटेच हो जाएगा प्लांट में से, बड है वो सेपरेट हो जाएगा और सेपरेटली इट विल बी फॉर्मिंग इनटू द न्यू, इट विल बी जर्मिनेटिंग इनटू द न्यू प्लांट्स। अंडरस्टूड। रूट
डेवलप होंगे, फिर शूट डेवलप होंगे, तो इस तरह से पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा फ्रॉम द बल्ब टाइप ऑफ एन स्ट्रक्चर. So this vegetative propagation is known as a jurio. So it is taking place in we can say an hydrophytes. इस तरह का जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है सिर्फ और सिर्फ इसमें होगा, हाइड्रोफाइट्स में होगा. ओके, आई बात समझ में? So these are the adaptation of an plants to an adverse condition. ठीक है? So the adaptation is over. हमने adaptation in animals भी पढ़ लिया. Now adaptation in plant is also over. Understood? Okay. So in next from the next lecture we will start about the next section of a chapter from the population. Okay.